Hi everyone. We'll give everyone 2 minutes to join in, and then we can start with our session today. Okay, hello everyone. Welcome back to our weekly career classes. My name is Muskan, and I'll be hosting today's live session. Thank you so much all for joining in. So today our topic is about the upcoming trends in law industry. So are you passionate about Indian law and the legal industry, but are unaware of career availabilities? And so there are a lot of options that we still don't know about. So it's not true that when you do law, you will become a lawyer. You you have bunch of opportunities that we are still yet to find out. So buckle up and let's get ready to learn about some new career trends in the law industry. So let's begin this session. And if you all have any questions about today's topic, please use the live chat to ask anything. To talk about our topic today, we are welcoming our very special guest, Dr. Shivani Verma. Dr. Shivani Verma is an assistant law profession at University of Delhi and an award-winning writer. Her book was one of the best books on criminology in India in the year of 2020. She has more than 17 years of teaching experience at various reputed law schools in Delhi. Welcome, Dr. Shivani, and thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me. Uh, And and so, can we start with a little brief about your background? How did you started? How did you get into law industry, and how it all came? yeah, definitely. So it's not a very interesting kind of a story, but yes, I always wanted to become a lawyer. That wit in the courtroom, that presence of mind, that communication skills which are required to be a successful lawyer, all those aspects of lawyering basically were very interesting to me. So since my childhood, I wanted to become a lawyer. So I pursued my graduation. After that, I went ahead with my law degree. Then I completed my master's, and my PhD happened to be in prostitution. Again, a very relevant and significant topic. उसके बाद net clear हो गया. Then got an opportunity to teach in most of the reputed law colleges in Delhi. Amity University में पढ़ाया मैंने, WIPS में पढ़ाया, and finally I'm teaching in Delhi University. So it has always been a very streamlined path, always law and nothing else than law. So that's all about me. अमेजिंग अमेजिंग सो डॉक्टर शिवानी एक स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में जैसे लोग बोलते हैं कि आप लॉ पढ़ने के बाद आपके पास लॉयर ही बनने का ऑप्शन है लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो जबकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आज हम लोग ये मिथ को ब्रेक करने वाले हैं एंड कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने वाले हैं सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन नाउ Yeah, sure, definitely we can go ahead with it. So I think मैंने अपनी presentation ना थोड़ा सा इस तरह से divide की है कि I wanted to touch upon the conventional careers also. ऐसा नहीं कि जो conventional careers हैं उनके अलावा जब scope create हो जाता है तो हम उनको भूल जाएं. Because they राइट are राइट till date very money earn करने का अगर सबसे अच्छा तरीका है law करने के बाद तो that still happens to be litigation. I'm not denying the fact that rest of the venues are also opened for the new generation lawyers, but conventional lawyering still exists and it is still very significant and relevant. राइट तो राइट वहीं से हम शुरू करेंगे सबसे पहले कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो जब हम लॉ राइट करते थे एटलीस्ट जब Can we मेरे proceed to the next page, please? इसके बाद वाला इज अबाउट इमर्जिंग सो Okay, कन्वेंशनल okay, okay. Right, it's right. only about a brief which I wanted to give. So Sure, जो sure. conventional career options है ना जिसमें हम most of the times दो तीन हिस्सों में बांट लेते हैं अपने करियर को एक है litigation या तो आप सिविल साइड चले जाइए या आप क्रिमिनल साइड चले जाइए
एक होता है आपका कि आप जुडिशरी क्लियर कर लीजिए या आर्मी में चले जाइए, इन जैग विच इज द एडवोकेसी ब्रांच ऑफ आर्मी और डिफेंस सर्विसेज टू बी मोर प्रीसाइज। अब ये जो चारों करियर ऑप्शंस है ना, जुडिशरी, सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन या जैग, ये हमारे कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस हैं। अब इनका थोड़ा सा प्रॉज एंड कॉन्स जानते हैं, सो दैट व्हाई न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एरियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। ये जो कन्वेंशनल तरीके का लिटिगेशन एंड लॉयरिंग है ना, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये ना एक ओवर सैचुरेटेड इंडस्ट्री बन चुका है। अगर आप किसी भी एक कॉलेज को उठा लेंगे, वहां से 1000, 2000, 3000 बच्चे हैं जो हर साल लॉयर बन के निकल रहे हैं, एलएलबी की डिग्री लेकर निकल रहे हैं। इन 1 ईयर और 2 ईयर प्रोबेबली सबसे कन्वेंशनल तरीका जो सीधा सीधा नजर आता है, वो इन बच्चों को नजर आता है कि हम लिटिगेशन में चले जाएं। बस सिर्फ इतना सा चूज कर लें कि मेरा इंक्लिनेशन क्रिमिनल में है तो मैं क्रिमिनल चूज कर लेता हूँ, सिविल में है तो मैं सिविल चूज कर लेती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट। तो एक जो डिसएडवांटेज हो गया है वो ये हो गया है कि ये ओवर सैचुरेटेड एरियाज हो गए हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एडवोकेट्स इज क्वाइट अ लॉट, and that is the reason that people sometimes find it very demotivating to create their own space. वो टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली जब हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की बात करते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है लॉयर, जो पहली जनरेशन, पहला इंसान निकलेगा अपने परिवार से लॉ करके, उसके लिए कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस में इस्टेब्लिश हो पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। जब जुडिशरी की हम बात करते हैं तो जुडिशरी अगेन इज समथिंग विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट, very time consuming. You need to allot designated 18 hours or more in your studies, and we need to fight on real grounds. हर बच्चा शायद जुडिशरी नहीं कर पाएगा। So हमेशा एक ये रहता है कि yes, judiciary is one of the best options available of the law, but still it is not cup of tea of every lawyer, I guess. So conventional career options में सिर्फ ये दो चीजें हैं, अच्छे हैं undoubtedly, saturated है undoubtedly। जुडिशरी में रिक्रूटमेंट बहुत बहुत टाइम गैप्स के बाद होता है, so you need to have a plan B, which I think is very reasonable way of handling your career. So that is, I think, all about conventional career options. Undermine नहीं करना है। अभी भी हमारे सबसे अमीर लॉयर्स लिटिगेशन से निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस, अभी भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग उन कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस में। पर चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इसके बियॉन्ड। आई होप इतना तो हम सभी को पता होगा, इफ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लॉ, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड। अब आते हैं राइट, अब राइट, राइट। सो बट अ, डॉक्टर शिवानी, जब हम आज का टाइम देखते हैं तो आज टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडस्ट्री पे। या तो उसकी वजह से क्या नए कुछ इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, कुछ नया करियर ट्रेंड ऐसा आया है? तो कैन वी एक्सप्लोर दैट आल्सो? या डेफिनेटली, एंड ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, आया है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, इन लेट 90s और रादर लेट्स गो टू 80s एंड 90s, जब एलपीजी शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, विद दैट लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस वर ओपन, लॉट ऑफ न्यू वेन्यूज वर ओपन फॉर इंडिया ऑल्सो। और उसी समय से ना आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है वेयर वर्ल्ड इज गोइंग, ये समझकर। तो ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ये ऐसा नहीं है 2000 के बाद आई, 2000 से पहले भी बहुत सारी हैं। अभी तो अचानक से बूम आया है, अभी तो अचानक से बहुत ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं। और डेफिनेटली करियर ऑप्शंस बहुत सारे खोले भी हैं उसने। बाद में डेफिनेटली ये भी बताऊंगी कि क्या क्या करियर ऑप्शंस शायद छिन जाएंगे, बट दैट्स अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ दैट। तो गुड पार्ट इज दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी न्यू, एंड दे आर ओपनिंग न्यू venues for all of us. So first of all, let's understand about AI and cyber security. We all understand artificial intelligence, आजकल बहुत बातें हो रही हैं उसके बारे में, बहुत बूम आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब जब हम लॉ की बात करते हैं ना, तो जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि क्या चीज किसकी है, क्या चीज किसने ओरिजिनली क्रिएट की है, बनाई है, तब एआई उस सारे जॉनरे में बीच में आके
प्लेजरिज्म, टेम्परिंग, डॉक्टरिंग ऑफ द एविडेंसेस पे काम करके हमें पता ही नहीं लगने देता क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है क्या जेन्युइन नहीं है। और साइबर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो एआई और साइबर वर्ल्ड मिलके एक ऐसा एरेना सा क्रिएट कर देते हैं विच इज वेरी न्यू फॉर लॉ मेकर्स ऑल्सो एंड वेरी न्यू फॉर द पीपल हु वांट टू प्रैक्टिस इन लीगल फील्ड ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है एज लॉयर्स कि हम इस एरिया को एक्सप्लोर करें, इस एरिया पे निकलने वाले नए नए लॉज को अंडरस्टैंड करें। हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया है, साइबर बुलिंग पे हमारे लॉज आए हैं। तो अगर यही राइट टाइम है इन लॉज को समझ के इन लॉज में अपनी जगह बनाने का और प्रैक्टिस करने का, सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे लॉयर्स को हायर कर रही हैं जिनको इस तरह के साइबर सिक्योरिटी लॉज के बारे में पता हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता हो, और जो उसको लिटिगेशन में इनकॉर्पोरेट कर पाए। सो मोर अपडेटेड इफ लेट्स से न्यू जनरेशन लॉयर्स हैं, हमारे लिए शायद डिफिकल्ट हो जाएगा इन आर 40s टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइबर लॉज एंड व्हाट इज एआई। प्रोबेबली द न्यू जनरेशन विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल होने वाला है टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन दोज ओल्ड स्कूल लॉयर्स जो अभी तक अपने आप को इस्टेब्लिश करके बैठे हुए थे। तो उसमें जगह बनाना शायद आसान हो जाएगा इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। उसके बाद अगर हम क्लाइंट डेटा प्रोटेक्शन पे आते हैं तो फिर से जब हम फोटोशॉप कर सकते हैं चीज़ें, जब हम प्लेजराइज्ड कर सकते हैं चीज़ें, तो फिर हम क्लाइंट के डेटास को भी छेड़खानी कर सकते हैं। चाहे वो बैंक के पास जो क्लाइंट डेटास हैं, चाहे वो हो, चाहे वो हैकिंग हो, चाहे वो आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस को यूज़ करके फेक आधार कार्ड बनवाने की बात हो, चाहे वो मोबाइल स्कैम्स की बात हो। अब लॉ की प्रैक्टिस क्या है बेसिकली, एक नया मेनेस आया, एक नया हरकत आई कोई सोसाइटी में जो सोसाइटी के डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर हमें पता चला कि अच्छा साइबर बुलिंग हो रही है, हमने साइबर लॉज बना दिए। हमें पता चला मोबाइल स्कैम्स हो रहे हैं, यूपीआई स्कैम्स हो रहे हैं, हमने यूपीआई सिक्योरिटी लॉज बना दिए। तो अब यहाँ पर जो जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे ही उसका गलत फायदा उठाया जाएगा, लॉ बनेगा। और जैसे ही लॉ बनेगा, उस लॉ को प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की जरूरत पड़ेगी। और फिर उनको गवर्नमेंट भी रिक्रूट करेगी अपनी एजेंसीज के लिए, उसको प्राइवेट क्लाइंट्स भी इंक्लूड करेंगे अपने केसेस को फाइल करने के लिए। उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, अब एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है, सारे एग्जाम्स हमारे आजकल एजेंसीज कंडक्ट करती है, वहां पे हैकिंग हो जाती है। तो वो लोग लॉयर्स को हायर करते हैं कि भाई हमको समझाइए कि हैकिंग को कैसे रोकना है, अगर कोई हैकिंग करता है तो व्हाट इज द लीगल प्रोसेस अगेंस्ट इट। So all these technologies are basically definitely creating a very good scope for lawyers, provided आप जानते हो कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और इनसे रिलेटेड लॉज क्या हैं। ओके, अब थोड़ा सा और इसके बारे में अगर हम समझेंगे ना, तो जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आप आज से 40 साल पहले बात करते प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कोई बोलता मूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है, कोई कहता अच्छा इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास एक नए तरीके की प्रॉपर्टी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो शायद दिखती नहीं, आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, पर वो आपकी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली आपने क्रिएट की है। अब देयर इज दिस होल न्यू पेटेंट लॉज, ट्रेडमार्क लॉज, कॉपीराइट प्रिवेंशन एक्ट्स, ऑल दीज लॉज आर बेसिकली अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। और अभी रिसेंटली पेटेंट लॉयर्स, एक नया जॉनरे ऑफ लॉयर्स क्रिएट हुआ है, एंड इट्स द मोस्ट ल्यूक्रेटिव लीगल फील्ड, लेट मी टेल यू। बड़ी बड़ी कंपनीज पेटेंट कराती हैं चीजें, इंटरनेशनली आप फाइट करते हैं। अमेरिका कह रही है ट्यूमरिक को हम पेटेंट कराएंगे, इंडिया कह रहा है हम कराएंगे, सो दैट फाइट गोज इंटरनेशनल। And if you have good पकड़ on that law, no, you can make a space for yourself. So it's very important कि ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे लिए रास्ते खोल रही हैं बेसिकली। अब थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पहले क्या, कोई लड़ाई हो गई, चलो कोर्ट चलते हैं। अब कोर्ट्स भी बेचारे ओवरबर्डन्ड, कोर्ट्स, पुराने लटके हुए केसेस, पेंडिंग केसेस, कोर्ट्स ओवरबर्डन हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा। तो कोर्ट क्या कहती है कि सारे केसेस प्लीज हमारे पास मत लेकर आइए, जो थोड़े लेस सिवियर केसेस हैं उनको आपस में मीडिएशन से सॉल्व करने की कोशिश करो, कंसिलिएशन से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो एक पैरेलल तरीका क्रिएट हो रहा है टू सॉल्व द केसेस, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और इंडिया ने इंटरनेशनली कमिट किया है कि इंडिया एडीआर हब बन के दिखाएगा।
अभी तक हमें सिंगापुर जाना पड़ता है, अभी तक हमें ब्रिटेन जाना पड़ता है, अमेरिका जाना पड़ता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस के लिए। सो अब इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 6-7 साल में बोला है दैट वी वांट टू बिकम अ रीजनल हब फॉर एडीआर। सो अगर इंडिया इस तरफ कोशिश कर रहा है कि एडीआर का हब बनेंगे हम, हमारे यहाँ सेंटर्स होंगे एडीआर के, तो कितने लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने सारे Right. मीडिएटर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर दुनिया उस तरफ जा रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को पहले से तैयार करें कि देयर इज for Indian lawyers, no, to make that hub out of India for arbitration. So this is again something which is very, very interesting, and we must conquer that field. Okay, just a second. Okay, then there is this communication and client intake. अभी क्या होता था ना, basically there are specific arenas and you need to conquer, you need to understand all the aspects of lawyering. अभी अगर मैं आपको बोलूंगी आप वकील हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अच्छा, someone is wearing that black coat and gown and fighting in the court, है ना। हमको ये नहीं पता है कि वहां पे खड़े होने से पहले, कोर्ट में पहुंचने से पहले उसने क्लाइंट से मीटिंग की होगी, उसने ड्राफ्टिंग की होगी, उसने केस को समझा होगा, उसने केस को प्रिपेयर किया होगा, और फिर वो वहां पहुंचा होगा। तो ये जो स्टेप्स है ना, क्लाइंट से मिलना, क्लाइंट का केस समझना, फिर ड्राफ्टिंग करना, फिर ड्राफ्ट प्रिपेयर करके वहां पर जाकर फाइट करना। नाउ पीपल आर हायरिंग अ टीम for all these designated steps. It is not one lawyer who's going to the court and fighting and taking care of all the aspects of the cases. एक लॉयर के पास एक क्लाइंट कम्युनिकेशन करने के लिए एडवोकेट होता है, जिसने क्लाइंट काउंसलिंग में एक्सपर्टीज ली होती है। उसके बाद एक ड्राफ्ट पर्सन होता है जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है ड्राफ्टिंग में। वो भी ऑब्वियसली लॉयर होगा, बिकॉज यू नीड टू इनकॉर्पोरेट द लॉ व्हाइल यू ड्राफ्ट एनी प्लीडिंग। उसके बाद आपके पास रिसर्च, so this new genre of lawyers who are not expertised in fighting a case, but only having expertise in one aspect of fighting a case. तो वो client intake and communication is again something जिसने और सारे parameters हमारे लिए खोले हैं। Then labor laws हैं हमारे पास। labor laws में न्यू एडवांसमेंट क्या हुई है कि हमने ना बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। हमारे यहाँ हाउस हेल्प्स हैं, हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, हमारे यहाँ अर्बन क्लैप जैसी कंपनीज हैं जो लेबर प्रोवाइड कर रही हैं घर पे, आउटसोर्सिंग कर रही हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं बेसिकली। सो व्हेन दीज क्लाउड सर्विसेज केम, व्हेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ organized labor and unorganized labor, it intermixed with each other. That is when a new kind of labor system is created in India. Understanding my point? और उससे क्या होता है ना, उससे आपके लिए जरूरत क्रिएट होती है ऐसे लॉयर्स की जिन्होंने कन्वेंशनल लेबर लॉ के साथ साथ ये क्लाउड किचन्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, इनको समझाओ, जिनको समझ हो कि कितने सारे, अब अगर लेट्स से मैंने अर्बन क्लैप से किसी को बुलाया, तो देर इज वन कंपनी हु इज इन्वॉल्व, देर इज यूपीआई बैंकिंग प्रोसीजर विच इज इन्वॉल्व, देर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू कम एंड गिव मी द सर्विस। अगर कोई कंटेंट रिक्वायर्ड है, ही इज गोइंग टू गो एंड बाय दैट मटीरियल फॉर मी। So there are 5-6 contracts in one service providing exercise, और हर एक एलिमेंट के लिए एक नया वकील यूज हो सकता है या वो अपना मार्केट क्रिएट कर सकता है। सो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इनका ये मैं बोलूंगी कि बेनिफिट है कि ये टेक्नोलॉजीज ना इंट्रिकेट होती हैं। ये सीधी सीधी नहीं होती कि आप मुझसे लड़ रहे हो। ये क्या होती है कि आपने मुझ तक पहुंचने से पहले जूम का इस्तेमाल किया, लेट से आपने मैकबुक का इस्तेमाल किया, लेट से आपने एयरटेल के कनेक्शन का इस्तेमाल किया इंटरनेट के लिए। सो नाउ यू हैव अप्रोच्ड मी, जिसके बीच में 5 और पार्टीज हैं जो आ गई। अब उन पांचों पार्टीज के लिए अलग अलग लायबिलिटीज हैं, और उन अलग अलग लायबिलिटीज के लिए अलग अलग वकील लड़ सकते हैं। Understanding my point? So it's not you talking to me. It's 5 people from your side, 5 people from my side, which are connected. That's how we are having this meeting. तो अब अगर एक भी कोई फ्लॉ होगा, तो केस में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? एटलीस्ट 10 लोग।
हर 10 में से हर आदमी का एक अलग वकील हो सकता है। किसी को इंटरनेट की जानकारी होगी, किसी को जूम की जानकारी होगी, किसी को लॉ की जानकारी होगी, है ना? So that is how Okay, technology is creating it for sorry, us. sorry, ma'am. I'll have to disturb you here. I cannot see your screen. Can you share it Okay, again? just a second. Now, can you see this? Yeah, yeah. Okay. I, right. Yeah, we can proceed. Okay, so that's all, I guess. Positive जो technology advancements हैं, ओके। पहले क्या होता था? पहले चीजें वकील करते थे, हाथ से करते थे, लिखते थे बैठ के, फिर आया चलिए टाइप कर लेते हैं। Okay, then we started typing things, and for that we started recruiting stenographers or typists for that matter. अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है ना कि एआई से तो हम जनरेट करा लेते हैं अपने ड्राफ्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे लिए बने बनाए टेम्पलेट्स में मौजूद हैं, आपको उसमें सिर्फ पार्टीज के नाम बदलने हैं एंड यू आर गुड टू गो। So, as far as the technology is creating new marketplace for the lawyers, it is also taking away some of the chances or some of the jobs from us, because automation, because auto-created templates, they are readily available. है ना? So this is one of the loopholes, if at all I have to name it something, of the advanced technologies which we are going through. So, So ma'am, I, if we yeah. see this as a future change, so is there a chance that these technologies can replace some human roles also? See, I tell you one thing, which is a very good thing with lawyers, that आप कितना भी फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर बना लीजिए, है ना? लॉ किससे डील करता है? लॉ लोगों के बिहेवियर से डील करता है ना? Right, कौन correct, सा correct. बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है, कौन किसके साथ किस तरह से एक्ट कर रहा है। लॉ, अगर हम ब्रीफली टॉक करें तो लॉ टॉक्स अबाउट बिहेवियर्स एंड डिसिप्लिन द सोसाइटी। डन। सो अब आप सोच के देखिए, क्या ऐसा सॉफ्टवेयर बन सकता है जो सारे पॉसिबल ह्यूमन बिहेवियर्स के जवाब दे पाए? Understanding my point, it is not possible. And we are not talking about one human and its behaviors. We are talking about billions and millions of people in the world and their individual behaviors. Okay? Correct, correct. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमने अभी सेम सेक्स मैरिज पे बहुत सारी बातें पढ़ी, है ना? तो जब सेम सेक्स मैरिज को लेके डिस्कशंस हो रहे थे, तो जेंडर आइडेंटिटीज को लेके डिस्कशंस हो रहे थे। जेंडर आइडेंटिटी में आपका दिमाग आपको किस तरह की आइडेंटिटी दिखाता है, वो बेसिकली आपका जेंडर कहलाता है। डन। तो जब ये डिस्कशंस हो रहे थे तो बोला गया कि 123 तरीके के मेंटल इंक्लिनेशंस हो सकते हैं एक इंसान में, और वो 123 तरह के इंक्लिनेशन उसकी जेंडर आइडेंटिटी को चेंज कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और वो भी तब जब वो जेंडर आइडेंटिटी कांस्टेंट है। ऐसे भी लोग हैं जो जेंडर फ्लूइड हैं, जो शायद 2 साल बाद या सुबह या शाम अलग फील करते हैं। आर यू गेटिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट? Right, Okay, right. and this is one behavior which is sexual that I'm talking about. तो अगर हम इस एक छोटे से बिहेवियर को, जिसके लिए हमारे पास मेडिकल साइंस भी है थोड़ा सा हेल्प करने को, तो अगर हम इस एक बिहेवियर को डिकोड नहीं कर पाए, तो उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आप इमेजिन कीजिए हाउ मेनी ऑफ द बिहेवियर्स आर देयर इन द वर्ल्ड, एंड हाउ कैन वन सॉफ्टवेयर, और लेट्स से मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दे आर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम to assess the behavior, scrutinize and behavior and give us an answer. उसके लिए आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी। और लॉ Correct. कभी भी एक्शंस को नहीं जज करता, उस एक्शंस के साथ इंटेंशंस को जज करता है ना? तो जब But इंटेंशंस की बात आएगी तो कैसे सॉफ्टवेयर काम करेगा, है ना? right. Yeah, I agree to your point. It's like very, it's making sense. But uh, ठीक है, completely take over नहीं कर सकता है टेक्नोलॉजी, बट क्या कुछ रोल्स को तो इफेक्ट कर सकता है, कुछ रोल्स तो गायब हो सकते हैं। पता है, कुछ रोल्स ना वो गायब हो सकते हैं जिनको मैं सब्सटैंटिवली मिनिस्क्यूल रोल्स कहूंगी, जिनको मैं ये कहूंगी कि
उससे आपको डरना नहीं चाहिए, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। ये वो वाले रोल्स हैं, अगर आप बहुत ही निहायत ही लेजी किस्म के वकील हैं ना, तो आप डेफिनेटली डरेंगे कि अरे ये तो मुझसे ले लिया गया, ये तो मैं कर रहा था, ये अब मुझे नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ये अब ऑटो जनरेटेड है या इसके टेम्पलेट सब मौजूद हैं। ओके, बट इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग लॉयर, नो, you have made your style of communication, you have evolved your expertise in drafting, nobody can take that away from you। एक होता है ना कि आप आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट एआई कितना भी जनरेट कर ले, यू हैव योर ओन सेंस ऑफ कलर्स, यू हैव योर ओन स्ट्रोक्स एंड नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। सो लॉयरिंग चाहे कितना भी टेक्निकल सा फील्ड लगता हो कि लिख दिया आपने, सब सेम ही तो लिखते हैं, नो, यू हैव योर ओन स्पेसिफिक टच एंड नोबडी कैन टेक दैट अवे, प्रोवाइडेड यू हैव इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड योर ओन स्टाइल। ओके, सो हमें हमें बेसिकली वो नहीं चाहिए कि एक ही लॉयर के Right. हमें क्लोन्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको क्लोन बनना है तो डेफिनेटली जॉब्स जाएंगी, पर अगर आपको खुद का स्टाइल क्रिएट करना है तो फिर आपका स्टाइल आपका है, वो कोई नहीं ले सकता, है ना? Right. Right. Nobody can take your uniqueness. That's what I'm saying. Yes, exactly. Right, right. So Okay, should we so we are reaching to the end of our session. So let's proceed with our next slide topic. थोड़ा सा? Yeah. So just give me a second. I cannot go ahead. Okay, so emerging practice areas. So इसमें I have enlisted a few of the areas, although ये comprehensive हो ही नहीं सकता. There are a lot of areas beyond this. और इसमें मैंने conventional areas नहीं डाले because the topic is emerging. So I have incorporated only those areas which are comparatively new. ओके, सो आजकल हम अचानक से तो नहीं, लेकिन हाँ, जब हमने पोल्यूशन हद से ज्यादा कर दिया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा और हमें बात करनी पड़ी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, क्लाइमेटिक चेंजेस की। सो आजकल एनवायरमेंटल लॉ इज समथिंग विच इज विटनेसिंग अ बूम इन इट बेसिकली, चाहे वो क्लाइमेट प्रोटेक्शन है, चाहे वो अदर देन क्लाइमेट प्रोटेक्शन भी ब्रॉडर सेंस में एनवायरमेंटल लॉज हैं। इसमें आपका डोमेस्टिक प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो ही सकती है, इसमें आपका आजकल इंटरनेशनल एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल लॉ के फील्ड में काम कर रहे हैं और सबको लीगल हेल्प चाहिए। ऑब्वियसली यू कैन नॉट आस्क समवन के आप प्लीज इस तरह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए जब तक आपके पास वो लॉ का डंडा ना हो उनके लिए। तो लॉयर्स बेसिकली आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड मोर एंड मोर इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कंपैरेटिवली नया है। साइबर सिक्योरिटी काफी नया कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट अगर मैं किसी को बोलूंगी तो वो आया है हेल्थ लॉ। With this trend of cosmetic surgeries and plastic surgeries and people being more and more aware about their health and about the way they look, बहुत सारे ऐसे clinical negligence matters आए हैं। तो health law और जो last में मैंने लिखा है clinical negligence laws, ये एक नया field है comparatively जो evolve होके आ रहा है। कौन से drugs use करने हैं, कौन से drugs के क्या side effect हैं, ये सारे laws बन रहे हैं। और उन laws के लिए ना हमारे पास कोई स्पेशल लॉयर्स नहीं है, पुराने ही लॉयर्स बेचारे पढ़ के आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें एक्सपर्टीज करके निकलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी न्यू फील्ड and very a field which is here to stay. It is not going anywhere, let's say for next 20-25 years तक नहीं जा रहा ये कहीं पर भी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हेल्थ लॉज को पढ़ो, क्लिनिकल नेग्लिजेंस लॉज को पढ़ो, नया फील्ड है कंपैरेटिवली। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉज, हम सभी को पता है कि कंपनीज, पैसा, एंड कॉर्पोरेट लॉज आर बेसिकली वेरी व्हाट डू यू से ल्यूक्रेटिव काइंड ऑफ जॉब्स। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बता दूं कि वो जो लॉयर्स हमारी इमेज बनती है ना फिल्म्स देख के कि प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, कॉर्पोरेट लॉयर्स बेचारे डेस्क जॉब होती है उनकी, लेकिन दे आर वेरी वेल पेड। दैट 9 to 5 काइंड ऑफ मेंटालिटी इफ यू हैव एंड यू आर हैप्पी टू वर्क 9 to 5 or 10 to 6 for that matter. So corporate law is one such field which is very highly paying field. Okay, so depending upon आपका किस तरह का blend of mind है, it's a very good option. Then dispute resolution we've talked about, energy law, another law, and blockchain, इन दोनों का साथ में बात करते हैं। तो एनर्जी लॉ क्या है, आजकल ना बहुत सारे, एंड इंडिया में अडानी ग्रुप बेसिकली इज वर्किंग टू क्रिएट ग्रीन एनर्जी।
तो इंडिया ने फिर से कमिट किया है कि हम पहला कंट्री बनेंगे जो ग्रीन एनर्जी लेके आएगा। तो अगर हम, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज टू बी टू फॉर अस टू बिलीव बेसिकली, बट यस, इंडिया ने कमिट किया है टू ब्रिंग एन रिवोल्यूशन इन एनर्जी लॉज। तो अगर ऐसा होता है और अगर आपने वो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली आपको फटाफट एब्जॉर्ब किया जाएगा। एनर्जी लॉज बहुत नया फील्ड है, और वो भी ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करें। सिमिलरली बिटकॉइन नया नया आया, हमारे बहुत सारे ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होने शुरू हुए। अभी भी इंडिया में मुझे लगता है 10%, आई वुड से लेस देन 10% ऑफ द पीपल आर अवेयर कि लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी क्या ब्लॉकचेन्स में, वो पैसा है किस तरह का, उस पैसे पे टैक्सेशन का क्या प्रोसीजर होगा। तो अगर आप इस तरह के, इनको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के निकलते हैं, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट मेरे जैसा इंसान जो बहुत पहले लॉ पढ़ी है जिसने, उसके लिए it is very comparatively new kind of thing, and if you know all about these kind of things, I would definitely like to hire you and tell me what it is all about. Understand my point? So all these laws are the areas basically जहाँ पे आप अगर अभी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप होता है to practice in years to come. Okay, should I move ahead? Do you have to Yeah. So, quest? uh, Dr. Shivani, being a very senior in the industry, do you have some special tips for our students who are beginners or who want to start their career? We can move to the tips slide. Yeah. So basically, see, as I was telling you earlier also कि no doubt जब ये ऑटोमेशन की बात आती है, एआई की बात आती है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ सभी बच्चे डरे हुए हैं, ठीक है। अगर कन्वेंशनल प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो सैचुरेटेड हुआ पड़ा है मार्केट। नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो और डर लगता है कहीं हमारी जॉब्स ना ले ली जाएं। तो लॉ एक एनालिसिस बदल जाता है। तो मैं तो ये कहूंगी, हम लोग ना बहुत सारे, आई पर्सनली हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। सब बोलते हैं कि हम ना उंगलियों पे गिन सकते हैं भारत में कितने अच्छे वकील हैं, 10। तो जो 10,000 वकील एक कॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो जा कहाँ रहे हैं इतने सालों से। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अभी भी गिनती के 10 ही वकील हैं जो बेस्ट हैं इंडिया में और जिनको इंटरनेशनली जाना जा रहा है। तो वो कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो मैं तो ये बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपका कंपटीशन वो 10,000 से नहीं, उन 10 वकीलों से है जिनको सुप्रीम कोर्ट जजेस गिनती करके बैठे हैं। और 10 लोगों में सबसे ऊपर जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। अब अपने नंबर्स आप ढंग से कैलकुलेट करो ना, कि आपको 10,000 से कॉम्पीट करना है, नहीं, आपको वो 10 बेस्ट से कॉम्पीट करना है। अंडरस्टैंडिंग इट? सो जब आपको उन 10 बेस्ट से कम्पीट करना है, तो ये जो पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं ना, ये आपको समझने पड़ेंगे। आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, अच्छा पहले जुडिशरी में कोशिश कर लूंगा, फिर लिटिगेशन देख लेंगे, लिटिगेशन नहीं हुआ तो कहीं और चले जाएंगे। नो, ओके, just get your head straight, get your heart straight and understand what you want to do. And बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ना आपको ऑप्शंस देते हैं। तो आपको शुरू से पता होना चाहिए मुझे इंटरनेशनल लॉ में प्रैक्टिस करनी है, जब भी मुझे ऑप्शन दिया जाएगा मैं जो इंटरनेशनल लॉ में रेलिवेंट है वो चूज करता चलूंगा, सो दैट एंड में मेरा प्रोफाइल एक इंटरनेशनल लॉ के लिए बेस्ट होगा। ये नहीं कि ये भी कर लेता हूँ, क्या पता कल को ये प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। सो स्ट्रीमलाइन, देन रीड एंड लर्न टू कम्युनिकेट। हम कम्युनिकेशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एन एडवोकेट इज बेसिकली व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही सेज इन राइटिंग एंड थ्रू हिज वर्ड्स। सो एडवोकेसी को अगर एक कॉन्सेप्ट में निचोड़ के मैं बोलूं, तो इट्स कम्युनिकेटिंग। What you communicate, how well you've researched about it is very important. फिर आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कौन से शब्द लिखते हैं, किस तरह से बोलते हैं। So one thing which is very 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 important is communicate करो। अच्छे से अपने communication skills पे काम करो, लिखने पर भी और बोलने पर भी। आप कैसे communicate करते हो, लिख के और बोल के, दोनों तरीकों से। अच्छी रिसर्च करो। नई नई टेक्नोलॉजीज अगर आ रही हैं तो वो आपके काम को कैसे आसान, डरना नहीं है उनसे, वो आपके काम को कैसे आसान कर सकती हैं, कैसे आपका टाइम बचा सकती हैं, इसको समझने की जरूरत है और उससे अहेड यू नीड टू स्टे।
Okay, if there is something new have come, just master it quickly and stay ahead of your times all the time. Then understand the industry. Okay, it's a very very vast industry. Abhi to time hi nahi hai, nahi to I can go on and on and on about how many options are there in front of the law students. So समझिए इंडस्ट्री को, उसमें से शॉर्टलिस्ट कीजिए कि आपके काम का क्या है, बहुत वाइजली चूज कीजिए और ऑप्शंस रखिए, लेकिन डाइवर्ट मत हो जाइए. Understanding it. So options, let me say, I have studied international law. I know I can go and work in Amnesty International. I can go and work in United Nations. I can go and work in SAC. So ऑप्शंस इन दैट वन फील्ड, वो फील्ड आपके दिमाग में क्लियर हो कौन से में आपको जाना है, फिर उस फील्ड के सारे ऑप्शंस अपने सामने ओपन रखिए और एक्सप्लोर करो. ठीक है, लॉ कोर्सेज इस तरह से डिजाइंड है कि पहले ही साल में अगर नहीं समझ आ रहा, इट्स वेरी ह्यूमन, नहीं आता समझ, 5 साल चलता है ना लॉ कोर्स. 100% sure, then there is no scope of diversion. Then work on your craft and you would 100% excel. That's what my personal belief is. So I guess that's it from my side. If there is any question you can ask. Yeah. I had one question from you. So जब स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं, जब उन्हें कुछ पता नहीं होता है, बेसिकली वो अपना करियर एक फाउंडेशन बना रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे कैसे ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे आगे उन्हें लॉ इंडस्ट्री में हेल्प मिले. जैसे कोई स्टूडेंट है हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग हिज और हर करियर इन लॉ इंडस्ट्री, सो वो स्कूल में रह के ही क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं जो उन्हें आगे जाके करियर बनाने में हेल्प करेगा, उन्हें क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. Okay, so first and foremost, as I said, that you need to work hard upon your communication skills. Okay, and I do not want to demotivate people who are not probably having best possible communication skills. Okay, ऐसे भी fields of law हैं जहां पर आपके लिखित communication पे आपका पूरा career बन जाएगा. You are drafting the contracts only and you are not probably going and oral arguments आप नहीं कर रहे हो. ओके, सो आपको अपनी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स पता है, तो स्कूल टाइम से कोशिश कीजिए कि आपको ये पता चले कि आपके कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पे स्टैंड करते हैं. ओके, और अगर उसमें भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अगर आपको लगता है कि अच्छा मैं बोल अच्छा नहीं पाता हूँ, तो प्रोबेबली फॉर यू द अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ लॉ वुड बी ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, जहाँ पे यू वुड सिट, यू वुड रिसर्च एंड यू वुड ड्राफ्ट ऑन पेपर. प्रोबेबली यू वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्पीक. ओके, सो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं बोल पा रहे ढंग से तो अच्छा लॉयर नहीं बन सकते. डेफिनेटली यू कैन स्टिल बी अ लॉयर. सो दैट इज वन थिंग, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन यू आर इन द स्कूल. सेकेंड थिंग, वर्क ऑन योर रिसर्च. ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स लिखिए. आजकल स्कूल्स में एडिटोरियल बोर्ड्स होते हैं, आजकल स्कूल्स में जर्नल राइटिंग्स होती हैं. So talk to your teachers, explore the places where you can write and you can, research on certain topics. So all of that you can do in your school times. Debate kar lijiye. Debate is a very good way of learning law. So I guess that's it. All right. I think it's clear by my side, and it's time that we can wrap up this session. Thank you so So, much. uh, yeah. So as we wrap up today's session, I want to thank Dr. Shivani for sharing your insights with us. It was a very enlightening session for me as well. I also learned a lot of new things today, and I hope you all got your answers. And if you have any more questions, can you please put on the last slide? Last slide. Yeah, the last page. This one. Can you see We have this? a we have a QR code there. QR portal. This. Yeah, perfect. Okay. Yeah, this. So, if you all have any more questions about this career or any career, you can scan this QR code shown on your screen right now, and it will take you to our web app where you'll be able to see Ask Me Anything option, where you can directly get answers from our counselors. So, yeah, you can go ahead and explore, and don't forget to hit that subscribe button below. Stay updated. Thank you all for joining us today. It was a very great session. Thank you so much, Dr. Shivani.
Thank you Thank so much for you. your precious time. And I hope you all have a very nice day. And we'll see you next week. Okay, thank you. Bye bye.